Assalamualaikum. My name is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel. We are continuing our lessons. Subject is English for grade 6, and you can see this is our English book. Cambridge Express English for School Students Book 6. And in the previous video, we did from question number 1 till question number 7. These are on pages 41 and 42. When you open your page 41, so the question number 1 till 5 is on page number 41, and question number 6 and 7 are page number 42. We did this in the previous video. Now we are continuing the next part of this exercise, and the next part is the listening. Okay, you see this one, this is the listening part, and we are going to study this one. Okay, now one good way to conserve is to use natural products. Okay, Rita is one such product. Rita is the name of that product about which we are talking. Okay, and there will be a problem in English for you. No, okay, you can easily understand that one. Okay, I hope that you are easily understanding this one. If there is anything that is difficult for you, you are not understanding that, then tell me about that, and I will explain that in Urdu. Doesn't matter. Okay, so Rita is one such product which can be used instead of shampoo and soap. Reta is one thing. For example, we are using shampoo and soap, and there are a lot of chemicals in these things. And when we are using these soaps and shampoos, these chemicals are destroying our skin and our hairs. Okay, so we can use, according to them, we can use Reta, which is a natural product. We can use that Reta instead of using shampoo and using the soap. Okay, so they are saying that Rita is one such product that can be used instead of shampoo and soaps. So you will hear two people talking about Rita seeds. दो बंदे हैं, they are talking about Rita seeds now, and this is what their conversation is. We will listen to that, how they are talking about these things. Okay, so the pictures of the two varieties found commonly are given below. These are two things, one variety 1 and second one is this one. Okay, listen carefully and identify the two varieties. पहले आपने इसको समझना है, उसके बाद इन two varieties को हमने अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू वेराइटीज. के अंदर डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज इन द शेप ऑफ देयर लीव्स एंड सीड्स. वन, यू सी द difference in the leaves and shapes. This plant is of different shape. Their leaves are of different shape, and this one is different from this one. Okay, so now speaking. Okay, work out with the partner and practice the conversation given below. कहते हैं कि आप अपने लिए एक partner ढूंढ लें, search a partner for yourself and talk to them like they are talking. As they are talking here, we will study this one. Okay, one is Johnny. Grandma, look at this new items, medicines. Do they harm or heal? ठीक है, वो ये कह रहे हैं, जॉनी ग्रैंडमा से पूछ रहा है कि लुक एट दिस न्यू आइटम, एक नया आइटम है, क्या ये हमें नुकसान देता है या हमें हील करता है, फ़ायदा देता है? यानी अगर कोई हमारे बालों के अंदर कोई बीमारी है तो से ठीक हो जाएगी, या अगर हमारे बाल जड़ते हैं, हमारे सोप के ऊपर कोई स्किन के ऊपर कोई दाने वगैरह निकल आते हैं, तो उससे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. तो कहते हैं कि डू दे हार्म, क्या ये नुकसानदेह है, और हील, क्या ये फ़ायदेमंद है, फ़ायदा देता है या नुकसान देता है? हम ओके, लेट मी सी. ये हम अब आगे जाके इसको पढ़ेंगे. HMM मीन्स, ये आमतौर पर हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ सोचना पड़ता है, जब मुझे किसी बात के बारे में जवाब देना पढ़े और मुझे थोड़ा सा टाइम लगे जवाब देने में, सोचने में, मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ती है, देन आई विल से ओके. सो लेट मी सी. द न्यू आइटम से वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूज़ ऑफ मेडिसिन्स. कहते हैं कि द न्यू आइटम से, ये नया आइटम है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने में ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए. ठीक है, दे हैव एनफ मेटल्स एंड टॉक्सिन टू कॉज हार्म. इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं और टॉक्सिन्स हैं, जहरीली चीज़ें हैं जो कि नुकसान देने वाली हैं. ठीक है, विच ओके, विन लिखा, वेल सर्टन मेडिसिन्स, नॉट ऑल,
कुछ ख़ास मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर टॉक्सिन चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, एंड दे आर गिविंग अस हार्म्स। तो इसलिए सब के अंदर ऐसा नहीं होता। दोज कैन हार्म यू रादर देन हील यू। ये जो कहते हैं वो जो जिसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो ठीक करने की बजाय आपको नुकसान देता है। आपका जो मसला है वो हल करने की बजाय और जो है मसला बढ़ा देता है। इज इट ट्रू ग्रैंड माँ? क्या है जॉनी कह रहे हैं, क्या इज इट ट्रू ग्रैंड माँ? इज द मेडिसिन आई टुक यस्टरडे हार्मफुल? क्या ये सही है? क्या जो मैंने मेडिसिन कल लिए थे वो नुकसानदेह है? जॉनी पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रैंड माँ क्या कह रही है? सम मेडिसिन डू हैव साइड इफेक्ट्स बट बिकॉज दे आर केमिकल्स। कुछ मेडिसिन हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक बीमारी ठीक हो जाती है तो दो बीमारियां पैदा कर देती है। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ये कि जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपकी बीमारी के अंदर साइड भी और बीमारियां पैदा कर देते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सम मेडिसिन डू हैव साइड इफ़ेक्ट्स बिकॉज दे आर केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स बिकॉज दे आर केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स हैं तो इस वजह से उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, फितरी तौर पे चीज़ें नहीं पाई जाती, बल्कि इसको बनाया जाता है, केमिकल्स से बनाया जाता है, ठीक है। दे आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड, इन आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे इंसानों ने उसको बनाया होता है, ठीक है। इंस्टेड हर्ब्स लाइक बेसिल्स कैन बी यूज एज मेडिसिन। कहते हैं कि जैसे हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ जो कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की चीज़ नहीं है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। और केमिकल्स में से चीज़ों को बनाया जाता है। हर्ब्स जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं तो वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचर में पाई जाती हैं, और इसको हम क्या करते हैं, उसको ज़ुकाम के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए इन जड़ी बूटियों को यूज़ करते हैं, दर्द वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि वो कुछ दवाइयाँ ऐसी है, केमिकल्स होते हैं, इंसानों ने बनाया हुआ होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो नुकसान देते हैं। इट कैन क्योर माइनर इलनेसेस, छोटी मोटी बीमारियाँ तो ठीक हो जाती है उससे। हैवंट यू सीन बेसिल्स इन आवर गार्डन, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आपने बेसिल्स को हमारे गार्डन में नहीं देखा आपने, ठीक है। ओके जॉनी, देयर आर अदर हर्ब्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज। वहाँ पे दूसरे जो है वो हर्ब्स है, जड़ी बूटियाँ हैं, फ्रूट्स भी हैं, सीड्स भी हैं, जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है, मतलब उसकी दवाइयों के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स भी हैं, मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो कि एज ए मेडिसिन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जॉनी, इज देयर एनी हार्म इफ आई ईट बेसिल्स लीव्स ग्रैंडमा? ग्रैंडमा, अगर मैं बेसिल्स लीव खा लूँ तो इसका कोई नुकसान होगा? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो हार्म्स, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट पीपल वॉश द लीव्स, क्रश देम, जो पत्ते हैं उनके जो है वो पहले धो लेते हैं, उसके बाद क्रश कर देते हैं, मिक्स इट विद हनी, उसको शहद में मिला देते हैं, एंड ईट द मिक्सचर एज अ होम रेमेडी एंड ईट द मिक्सचर एज अ होम रेमेडी फॉर कफ। और उस मिक्सचर को फिर ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। रियली? जॉनी कह रहा है रियली, वाकई, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो दे डोंट हैव टू बाय कफ सिरप, तो उससे फिर कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यस, दी ग्रैंडमा कह रही है, यस दीज होम रेमेडीज़ आर क्वाइट इफेक्टिव। ये जो होम रेमेडीज़ होती है, घर की बनाई हुई जो चीज़ें होती है, ये बहुत इफेक्टिव होती है, एंड चीपर, सस्ती होती है, एज वेल व्हेन कंपेयर टू एक्सपेंसिव मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। उनके निस्बत जो हम केमिस्ट शॉप से, मेडिसिन के जो मेडिकल स्टोर से हम लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है दवाइयाँ, तो उसकी निस्बत ही बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट राइटिंग का जो पार्ट है, नेक्स्ट जो है ये पेज नंबर 43 के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।